Today, I am going to explain about the conditions for combination of atomic orbitals to form molecular orbitals. So, such type of atomic orbitals which form molecular orbitals by constructive interference or by destructive interference, they should follow the following condition. First condition is that the atomic orbitals should have comparable energy. जो भी atomic orbitals combine करते हैं, they should possess comparable energy. For example, we are considering the example of homonuclear diatomic molecules. Suppose we are considering examples of homonuclear. Homonuclear means which have same type of nucleus of the type A2. It means both the atoms are of same type. In that case, combination of 1s and 1s is possible because they have same energy. Combination of 1s and 2s is not possible because they have sufficient energy difference between their orbitals. Now, in case of heteroatomic molecules or homonuclear molecules of the type AB, it means both the atoms are of different orbitals. In that case, combination is only possible if they possess particular comparable energy. For example, 2s can combine with 2s, but 2s cannot combine with 2p. Clear? The second condition for the combination of atomic orbitals is that the combining atomic orbitals must possess proper orientation. They should possess proper orientation. Proper orientation means they have same symmetry. It means जो molecule की symmetry है, that should be same. If the symmetry is same, then they undergo proper orientation or combining. For example, we have taken z orbital. 2pz is taken along the internuclear axis. In that case, this 2pz orbital, now it is named as 2pz because this internuclear axis is named as z. Now this 2pz can combine with other 2pz orbital, so that now these two orbitals have proper orientation, both are symmetrical. Now their combination is possible. अब ये orbitals combine कर सकते हैं, ठीक है. But suppose if we have taken 2px and 2pz, now they do not have proper orientation, so in this case they do not combine. So in short, we can say that if the molecular orbitals are symmetrical, then it results in formation of सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल. अगर हमारे पास जो भी कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं, अगर वो सिमेट्रिकल है, इन दैट केस द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड इज आल्सो सिमेट्रिकल एंड इट इज combined at the internuclear axis. So in that case, the bond formed is called as sigma bond and the orbital is called as sigma molecular orbital. Secondly, if the molecular orbital is not symmetrical, if the orbital is not symmetrical, in that case the bond is called as pi molecular orbital and the bond formed is called as pi bond and the orbital formed is called as pi molecular orbitals. So what are the types of bond formed? This topic we have already discussed under the section sigma and pi bond. ये हम कर चुके हैं पहले, सेम उसी टाइप से है. So try to read it yourself. Next is energy level diagrams for molecular orbitals. जो हम molecular orbitals draw करते हैं on the basis of energy, वो हम किससे से represent करते हैं. In that case, suppose combining of orbitals takes place. In that case, we obtain different types of molecular orbitals. Suppose we have two atoms of nitrogen. Now these atomic orbitals of nitrogen combines to form molecular orbitals named as N2. As we know, the configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p x1, 2p y1 and 2p z1. This is for first nitrogen atom and second is for second nitrogen atom. It is 1s2, 2s2, 2p x1, 2p y1 and 2p z1. This is the atomic orbital of first nitrogen. This is the atomic orbital of second nitrogen. And these are the configuration. When these two combine, it results in formation of molecular orbitals. And now we have two types of molecular orbitals named as bonding as well as anti-bonding orbitals. When this 1s combines with 1s, अब जब हमारे पास combination होगा, now these two orbitals have comparable energy, so they undergo combination resulting in formation of two molecular orbitals named as sigma 1s and sigma star 1s.
ठीक है, जिसमें एक बॉन्डिंग आएगा हमारे पास और एक कैसा आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी 2, देयरफॉर इट इज रिटन एज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। नेक्स्ट कंबाइनिंग ऑर्बिटल इज 2s, both also have comparable energy, therefore these are called as degenerate orbitals, undergo combination resulting in formation of sigma 2s, this is called as bonding molecular orbitals, and sigma star 2s, it is called as anti bonding molecular orbitals। इसमें सिग्मा है क्योंकि एनर्जी कम होगी, इसमें सिग्मा स्टार है, इट मीन्स इसकी एनर्जी हाई होगी एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ दिस 2πx and 2py, these orbitals are said to be degenerate, they possess equal energy। जो हमारे पास 6 molecular orbitals है नाइट्रोजन के, we have 6 molecular orbitals of each nitrogen atomic orbitals, so according to this, out of these 6, the 2px orbital and the 2py orbitals, these orbitals are degenerate, they are said to be degenerate, it means जो इनका एनर्जी लेवल होगा, जो एनर्जीज आएंगी इनकी, दैट इज मीन्स दे पोजेस इक्वल एनर्जी। अब यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी, इस केस में इक्वल आएगी, देयरफॉर इट इज रिटन एज, मीन्स जो इसमें 2px और 2py आएंगे उसका हम लेवल यहाँ पर सेम दिखाएंगे, इट इज़ कोल्ड एज पाई 2px, इट इज़ नेम्ड एज पाई 2py, both have the same energy level, so they are degenerate, hence they are written on the same energy axis। तो उस केस में जब px कंबाइन करता है, py कंबाइन करता है, तो बॉन्ड कैसी बनती है, पाई। क्लियर। नेक्स्ट इज सिग्मा 2pz। नाउ द एनर्जी ऑफ द सिग्मा 2pz इज लोअर एज कंपेयर टू द पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। जो हमारे पास सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स आ रहा है, इसकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी और एंटी बॉन्डिंग से क्या होगी, कम, इसलिए इसको हमने पहले यहाँ पर रखा है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। इन दिस वे वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द गिवन मोलिकुलर ऑर्बिटल। सो दिस कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन फॉर नाइट्रोजन एटम, sorry, nitrogen molecule। Now it consists of 7 electrons, it also has 7 electrons, therefore in total nitrogen molecule has 14 electrons। Now we have to fill the 14 electrons in this configuration, 1s2 2s2, sorry, 1s sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2। next is 2 pi x1 2 p pi, sorry, पाई 2px एंड पाई 2py। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, 14। पहले इसके अंदर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी हमारे पास रूल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल है, पोल एक्सक्लूजन है, हंट्स रूल है, उन सबको फॉलो करना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो फिल हो चुके हैं 2 4 6 8 9 10। अब हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 11 12, उसके बाद 13 एंड 14। तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ फॉर नाइट्रोजन मोलिक्यूल। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि स्पेसिस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने ऑर्बिटल्स आए हैं, हमारे पास 2 टाइप के हैं, फर्स्ट इज कोल्ड एज NB एंड सेकेंड इज कोल्ड एज NA। दिस NB स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दिस NB स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग orbitals, or the we can say that electrons present in bonding orbital, and A represent the electron present in anti bonding orbital। यहाँ पर जो B वर्ड यूज किया है, B is used for bonding and this A is used for anti bonding orbital। now in this nitrogen this is bonding and these are also bonding electron। ठीक है, जो फर्स्ट शेल होती है 1s या सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, this is called as KK shell, this shell is named as KK shell and this shell does not participate in bond formation। तो जो भी हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे रेस्पेक्टिव मोलिक्यूल के लिए, उसमें इसको हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम स्किप क्यों करते हैं, बिकॉज दिस शेल इज नेम्ड एज KK shell, it does not participate in bond formation, therefore we will show the energy level diagram from sigma 2s orbital। clear, in the simple way we can also show from this sigma 1s,
बट इन एक्चुअल वी विल काउंट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑर्बिटल। क्लियर है। अब इसकी हेल्प से हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल कैसा आएगा, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। क्योंकि ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कब होगा, जब उस केस में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ज़्यादा बनेंगे, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, देयरफॉर मॉलिक्यूल इज स्टेबल। अगर रिवर्स होता है, इफ़ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, अब एंटी बॉन्डिंग का नंबर क्या सा हो गया, मोर, इट मीन्स इन दिस केस देर आर मोर नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, तो रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे, ज़्यादा, देयरफॉर मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। नाउ थर्ड केस, if number of bonding and number of anti-bonding orbitals are equal, electrons in bonding and anti-bonding orbitals are equal, in that case the molecule is also again said to be unstable in nature। unstable क्यों होगा, क्योंकि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आएगा बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग का, वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स उस केस में मॉलिक्यूल फिर से क्या पोजेस करेगा, अनस्टेबिलिटी, क्योंकि जितना भी इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ग्रेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू द अदर, so in that case the bonding influence of electron is observed in the bonding molecular orbital। clear, because if the number of electrons are equal, in that case the anti-bonding influence of electron in this molecular orbital is greater। इसका इफेक्ट क्या होगा, ग्रेटर एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग। अगर इफेक्ट ग्रेटर आता है एंटी बॉन्डिंग का, इट मीन्स मॉलिक्यूल वहाँ पर कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज हाफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दोनों का डिफरेंस करके उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर की। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, इट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, वहाँ पर स्टेबल होगा। ठीक है, इन दिस केस द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज स्टेबल। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज लेस एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग, इन दैट केस बॉन्ड ऑर्डर कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो, तो उस केस में मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अनस्टेबल। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल के फिर 2 केस आएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर आए थे। तो सेकंड केस होगा, इफ़ द नंबर ऑफ बोथ molecular orbitals are equal, again molecule is said to be unstable। in this way we can explain the stability in terms of bond order or in terms of electrons present in bonding or anti-bonding orbital। third point is relative stability of molecules in terms of bond order। अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं कि इस फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा, इट मीन्स मॉलिक्यूल वहाँ पर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। अगर मान लें हमारे पास 2 बॉन्ड आते हैं, एक फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, इफ़ वी हैव 2 बॉन्ड ऑर्डर, वन इज़ प्रेजेंट इन फ्रैक्शन एंड अदर इज़ होल नंबर, तो जो फ्रैक्शन वाला होगा वो भी स्टेबल होगा, लेकिन उस केस में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके अंदर आएगी, द बॉन्ड ऑर्डर विच इज़ प्रेजेंट इन होल नंबर। क्लियर है पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव bond order of nitrogen molecule in this way, N2 bond order 3, N2 positive negative bond order 2.5, N2 negative is 2, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इट मीन्स मॉलिक्यूल क्या होगा, मोर स्टेबल। फ्रैक्शन वाला क्या होगा, लेस स्टेबल। किससे, होल नंबर से। ठीक है, द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज नाउ ग्रेटर देन दिस 2, देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस N2 नेगेटिव, देयरफॉर दिस N2 नेगेटिव इज लीस्ट स्टेबल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड लेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इट मीन्स उस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम आएगा। अगर बॉन्ड लेंथ कम है, इट मीन्स वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, ज़्यादा। देयरफॉर ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट इज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर किसी भी स्पीसीज के अंदर मॉलिक्यूल्स पेयर्ड है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, सपोज हमारे पास ये ऑर्बिटल थे, हर एक के पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में है, तो ये स्पीसीज कैसा होगा, डायमैग्नेटिक।
सपोज अगर हमने यहाँ पर लिख दिया N2 पॉजिटिव, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर 13, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1। नाउ दिस मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंसिस्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड है तो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है अनपेयर्ड तो उस केस में जो स्पीसीज हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एंड डायामैग्नेटिक स्पीसीज आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक नेचर। और पैरामैग्नेटिक नेचर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट डज इट स्टेट? दैट इज √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी स्पीसीज का म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दिस n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, उसके हिसाब से सपोज हमारे पास n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1+3 सॉरी 1+2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 इंटू 3, तो √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, तो उस केस में जो म्यू की वैल्यू है वो कितना जाएगी 1.732, तो उस इट मीन्स उसके अंदर क्या होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस्ड बाय दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन लाइक मोलिक्यूल्स। नियोन हाइपोथेटिकल है, तो आपका होमवर्क क्या है, टॉपिक 4.9 से स्टार्ट करना है। एनर्जी कॉन्फिगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मोलिक्यूल्स एंड द मोलिकुलर आयंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो ऑफ द एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। यहाँ तक करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा ऑक्सीजन, वो हम कल स्टार्ट करवाएंगे। इससे थोड़ा सा रूल चेंज है, एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। क्लियर।